السلام علیکم پیارے مسلم بہن بھائیوں، آپ کو مسلم وائس ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ٹیم لا رہی ہے آپ کے لیے اسلامی سوال و جواب روزانہ کی بنیاد پر۔ اب چلتے ہیں چینل کی طرف۔ سوال: حنین کہاں واقع ہے؟ جواب: مکہ اور طائف کے درمیان۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر اپنی وفات کی خبر سے لوگوں کو کنایتا آگاہ فرما دیا تھا؟ جواب: حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس خبر کے الفاظ یہ تھے کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کروں گا۔ سوال: کس غزوہ کے عین دوران شراب مکمل حرام ہوئی؟ جواب: غزوہ بنو نذیر کے دوران شراب مکمل حرام ہوئی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں قاری کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے قواعد تجوید کے مطابق قرآن پڑھا ہو اسے قاری کہتے ہیں۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ سوال: کیا اگر انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا، اس لیے جنت میں ایک گروہ کا سردار بنایا گیا، وہ گروہ کون سا ہوگا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا، اس لیے جنت میں صابرین کا سردار بنایا گیا۔ سوال: سب سے پہلے عربی میں خط کس نے لکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے عربی میں خط لکھا تھا۔ سوال: اس نبی کا نام بتائیں جو پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جو پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ سوال: مجوسی کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب: مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب: غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ سوال: کون سے نمازیوں کے لیے ان کی نماز ہلاکت ہے؟ جواب: بے دلی سے پڑھی گئی نماز ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ سوال: کس نبی کو کافروں نے دریا میں پھینکا تھا؟ جواب: حضرت شمعون علیہ السلام کو جب دریا میں گرایا گیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کے دھڑ کو جو ابھی اوپر ہی تھا اٹھا لیا۔ سوال: پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ جواب: پہلے غزوہ کا نام غزوہ بدر ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی۔
सवाल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो की बीवी उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह अन्हा किसकी बेटी थी? जवाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो की बीवी उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अली की बेटी थी। सवाल बैत अक़बा ओला में कितने लोग थे? जवाब बैत अक़बा ओला में 12 लोग थे। सवाल ऐसी कौन सी नमाज है जिसमें सजदा नहीं होता? जवाब नमाज जनाजा है जिसमें सजदा नहीं होता। सवाल दुनिया में कौन से नबी थे जो गार में पैदा हुए थे? जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार में पैदा हुए थे। सवाल सितारे ज़मीन से छोटे होते हैं या बड़े? जवाब सितारे ज़मीन से बड़े होते हैं, यहाँ तक कि सबसे छोटा सितारा ज़मीन से 8 गुना बड़ा है और सबसे बड़ा सितारा ज़मीन से 120 गुना बड़ा होता है। सवाल वो कौन सी औरत है जिसने सबसे पहले ज़रा पहनी? जवाब हज़रत हाजरा हैं, उन्होंने हज़रत सारा के पहचानने के खौफ से ज़रा पहनी। सवाल वाक़या करबला में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से नवासे शहीद हुए? जवाब वाक़या करबला में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। सवाल कुरान पाक में हारूत और मारूत का तज़किरा कितनी बार आया है? जवाब कुरान पाक में हारूत और मारूत का तज़किरा एक मरतबा आया है। सवाल कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? जवाब कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के पास था। सवाल किसकी रहनुमाई में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को तरतीब दिया? जवाब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को तरतीब दिया। सवाल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी बीवियां थीं? जवाब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 11 बीवियां थीं। सवाल आसमान पर जिंदा उठाए जाने वाले अंबिया कितने हैं? जवाब आसमान पर जिंदा उठाए जाने वाले अंबिया 2 हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल कौन से नबी एक दिन में 1 साल के बराबर बड़े हो जाते थे? जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा होने के बाद एक दिन में इतना बड़ा हो जाते थे जितना दूसरे बच्चे 1 साल में होते हैं। सवाल खातिमुल अंबिया इसराइल किस नबी को कहा जाता है? जवाब खातिमुल अंबिया इसराइल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। सवाल कुरान मजीद की किस सूरत में है कि शैतान अपने मुतबय्यन से ला ताल्लुकी का इजहार करेगा? जवाब कुरान मजीद की सूरत इब्राहिम आयत नंबर 22 में है कि शैतान अपने मुतबय्यन से ला ताल्लुकी का इजहार करेगा। सवाल कुरान मजीद के किस पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं और कितनी हैं? जवाब कुरान मजीद के पारा नंबर 30 में 37 सूरतें हैं।
सवाल, कुरान पाक का लफ्ज सबसे पहले किस सूरत में नाजिल हुआ? जवाब, कुरान पाक का लफ्ज सबसे पहले सूरत मुज़म्मिल में नाजिल हुआ। सवाल, पहले इस्लामी झंडे का रंग कौन सा था? जवाब, पहले इस्लामी झंडे का रंग सफेद था। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी। सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा कौन सी सब्ज़ी पसंद करते थे? जवाब, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सब्ज़ी में कद्दू पसंद करते थे। सवाल, किस खलीफा राशिद का दौर सबसे कम है? जवाब, खलीफा राशिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर सबसे कम है। सवाल, कुरान पाक की किन सूरतों में जहाद की तलकीन है? जवाब, कुरान पाक की मदनी सूरतों में जहाद की तलकीन है। सवाल, कौन से 5 नामों वाली लड़कियां बहुत अमीर, कामयाब और खुश नसीब होती हैं? जवाब, नाम का इंसान की ज़ात पर गहरा असर पड़ता है। इन नामों वाली लड़कियां घर में बहुत रहमत का बाइस बनती हैं। एक, आलिया, ये नाम बहुत ही बाबरकत और खूबसूरत नाम है। इसका मतलब है अमीरजादी, आली नस्ब और बाइज़्ज़त। इस नाम वाली लड़कियां बहुत ही अमीर और इज़्ज़त वाली होती हैं। दो, जन्नत, ये नाम भी बहुत अच्छा है और इस्लामी नाम है जिसका मतलब है बहश्त, बाग, खल्द या फिर फिरदौस। जन्नत नाम की लड़कियां बहुत बाबरकत और खुश नसीब होती हैं। जवाब, तीसरा नाम है लीना यानी खजूर का पौधा। नरम, ये एक कुरानी नाम है। इस नाम की फजीलत है, इस नाम वाली लड़कियां बहुत खुश मिजाज और नरम दिल की मालिक होती हैं, सबका ख्याल रखती हैं और किसी को धोखा नहीं देती। चार, सफ़ा, इस इस्लामी नाम का मतलब है सफाई, पाकीज़गी, पाकी। इस नाम की लड़कियां बहुत परहेजगार होती हैं, सफाई सुथराई का ख्याल रखती हैं और गंदगी को नापसंद करती हैं। ये नाम भी कुरानी और बहुत ही पाक नाम है। जवाब, 5, दानिया, इस नाम का मतलब सखी, करीब होने वाली और दरिया दिल, यानी इस नाम की लड़कियां बहुत ही दरिया दिल होंगी और अपने आसपास के लोगों की मदद करेंगी और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। इस नाम वाली लड़कियां घरों में बाइस से बरकत होती हैं। सवाल, किस नबी को 7 लाख जबानों का इल्म था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानों का इल्म था। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक के यहाँ क्या लक़ब था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक के यहाँ कलीमुल्लाह का लक़ब था। सवाल, कौन सी हराम चीज़ पीना बिल्कुल जायज़ है? जवाब, गुस्सा हराम है, पीना बिल्कुल जायज़ है। सवाल, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का कौन सा मुल्क है? जवाब, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का छठा मुल्क है। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में किस शख्स ने बछड़ा बनाया था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में सामरी ने बछड़ा बनाया था। सवाल, इस हिंदू पब्लिशर का नाम बताइए जो कुरान की तिबात बड़े एहतमाम से करता था।
جواب: اس ہندو پبلیشر کا نام منشی نول کشور لکھنوی ہے جو قرآن کی طباعت بڑے اہتمام سے کرتا تھا۔ سوال: طائف کے سفر میں کون اور کتنے شخص ایمان لائے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر میں صرف ایک شخص ایمان لایا اور وہ ایمان لانے والا خوش نصیب باغ کا ملازم عداس تھا۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کس خاندان سے تعلق تھا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بنو عدی خاندان سے تعلق تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کس فرشتے نے سجدہ کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ روزانہ آنے والی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے مسلم وائس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔